months. In accountancy, we follow what system of accounting? Single entry or double entry system? Double entry system was introduced by who? A. Luca Pacioli. He is called the father of bookkeeping. He is the one who gave the debit credit wala method. He says double entry system, every transaction has two aspects, the debit aspect and the credit aspect, and the debit and credit are supposed to be equal. Okay, another thing, guys. Now this method, double entry system of bookkeeping, was introduced more than 500 years back. And till now, no other method has come which can replace it. The debit, credit, personal, real, nominal account का rules जो था, debit what comes in and all those stuff. That rule के हिसाब से हम जो entry pass कर रहे हैं, double entry system, no one has been able to give a more improved method which can replace this. More than 500 years. और आज के बाद 500 साल बाद भी कुछ नहीं होने, आके देख ले, ठीक है? This method is so perfect. Now, the rules that he gave, he said, okay, he classified the accounts into three parts: personal, real, and no. Personal accounts are accounts of all the parties with whom we deal. They must be either our debtors or creditors, because in a business, if you are dealing with a party, that party के साथ आपका या तो डेटर का या क्रेडिटर का ही रिश्ता हो सकता है. दो लोगों में डेटर क्रेडिटर का रिश्ता ही अलाउड है, बाकी बिजनेस में कोई और रिश्ता अलाउड नहीं. Okay, now the rule that he gave originally was debit the receiver, credit the giver for personal. I don't use that rule. I use the rule for debtors and creditors, because that party has to be either my debtor or my creditor. If that person becomes my debtor, debit, D for debit, D for debit. And when a person ceases to be debtor, credit. In case of a creditor, when a person becomes creditor, credit. And when that person ceases to be creditor, debit. Right? For example, नाम क्या है? ऑन करूं? ऑन है? हाँ, ओके. आज तो मंडे, तो आज नहीं रोएगी. जाने दे. शनि. ओके, अब ये समझो. Anyways, तो suppose I am selling goods to रोशनी on credit. मैंने उसको उधार में goods बेचा, तो मुझे उससे पैसा लेने का है, तो वो मेरे क्या बनते हैं? डेटर या क्रेडिटर? लेने का है ना. कोडवर्ड क्या अपना? देसी लेडी. देसी लेडी, ये रहा देखो, देसी लेडी. अगर मुझे किसी से पैसा लेने का है ना, तो ले डी. डी मीन्स वो मेरा कौन है? So Roshni becomes my debtor. As soon as I sell goods to her on credit, I have to receive money from her, so she becomes my debtor. लेने का है ना उससे पैसा, तो ले डी. देने का है तो दे सी. सी मीन्स क्रेडिटर. लेने का है तो ले डी. डी मीन्स debtor. तो रोशनी मेरी debtor बन गई. And when a person becomes debtor, हम उसको क्या करेंगे? Debit. तो हम रोशनी अकाउंट डेबिट करेंगे. Yes. Is that clear? अच्छा, कुछ दिनों बाद रोशनी आई, थोड़ा सामान वापस देके गई. मैंने उसको गुड्स बेचा था, थोड़ा सामान उसमें से इसने रिटर्न कर दिया, तो उतना पैसा मुझे उससे और लेना है कि उतने रुपए के लिए वो मेरी डेटर नहीं रही? नहीं रही. ceases to be debtor. So now when a person ceases to be debtor, हम उसको क्या करेंगे? तो on that day रोशनी account will be credit. Few days later वो बाकी का पैसा भी देगी. अब वो हमारी डेटर बनी या नहीं रही? Again ceases to be debtor, तो मैं again उसको क्या करूंगा? Credit. Is that fine? हाँ या ना? Okay. Clear? Okay. आनंद, मैंने इनसे लोन लिया. जैसे मैंने इनसे लोन लिया, अब मुझे इनको फ्यूचर में पैसा वापस
देने का है, देने का है, दे C means creditor, so then Anand becomes my creditor, and here when a person becomes creditor उसको क्या करने का, credit, तो मेरे बुक्स में मैं आनंद अकाउंट credit कर दूँ. Few years later I will repay that money, so now he becomes my creditor or he ceases to be my creditor, ceases to be creditor, so that time I will debit. Is that clear? Tell me yes or no. Yes sir. Okay, so these are the rules that we will use when we are doing any transaction with some party. Okay, we also have to keep a record of all our assets, and assets के accounts are called real accounts. The real accounts का rule क्या है? Debit what comes in, credit what. The most simplest rule, my favorite. Debit what comes in, credit what. बराबर है. तो अगर कोई asset हमारे पास आ रहा है, comes in debit, yes, जा रहा है, goes out, credit. And lastly, we have nominal accounts. We have to keep a record of all our expenses, losses, incomes, and gains, for which we have the rule for nominal account. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. For your reference, मैंने rules को number दे दिया है, I mean code numbers दिए हैं A1, A2, A3, A4, that are debit side, and the credit side के rule B1, B2, B3, B4. और हमने कुछ transactions इधर लिखे हैं और entries try कर रहे थे. और एंट्रीज के बाजू में यहाँ रूल भी लिखा, कौन से रूल की वजह से डेबिट या क्रेडिट हुआ है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस इन फ्यूचर. नाउ थर्ड तक हो गया था. फोर्थ, पेड सैलरी टू क्लर्क अमर ₹6,000. वी आर पेइंग सैलरी टू अमर. पहले मैं हमेशा कौन से रूल पे जाऊंगा? रियल. डेबिट व्हाट कम्स इन, वो फेवरेट है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. इजी है. बताओ इधर इस स्टेटमेंट से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? कुछ आ रहा है, जा रहा है? कैश. ओके, आ रहा है कि जा रहा है? Which property is involved? Cash. आ रहा है कि जा रहा है? कम से ना गोस आउट. गोस आउट तो डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट. तो कैश जा रहा है, गोस आउट क्रेडिट. B3 रूल. कितना अमाउंट था? 6,000. ओके, हमारे फेवरेट रूल से यानी रियल अकाउंट के रूल से हमको सिर्फ क्रेडिट मिला, और कोई चीज आ रहा है, जा रहा है इधर? नहीं. तो डेबिट नहीं मिला. तो अब डेबिट के लिए या तो ऊपर या नीचे जाना है. लेट्स गो ऊपर. पर पर्सन कौन है यहाँ? अमर. चेक करो इन दोनों में से कोई रूल उस पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा. हमने देखो, उसने हमारे लिए काम किया, हमने उसको सैलरी. फ्यूचर में उससे कुछ लेने का बाकी है, लेने का बाकी है, लेने का है, ले डी, वो हमारा डेटर बन गया, ऐसा कुछ हो रहा है? डज ही बिकम माय डेटर? तो A1 नहीं यूज हो रहा है. चेक A2 यूज हो रहा है. क्या पहले का कुछ पैसा बाकी था, वो मेरा क्रेडिटर था और अब हमने चुका दिया, वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, ऐसा कुछ हुआ? नो. तो none of these rules is applicable. तो हमारा should not be debited. Is that clear? चलो फिर नीचे जाते हैं. अभी डेबिट के लिए फिर नीचे ही जाना पड़ेगा. एक्सपेंस या लॉस है कोई इधर? एक्सपेंस है. कौन सा? सैलरी. सैलरी कौन सा? सैलरी. A4 के हिसाब से सैलरी को क्या करना है? डेबिट. सो लेट्स डेबिट सैलरी. The rule was A4. Move fifth. Guys, wait. Okay.
Next, introduced capital in the business. Who introduced capital in the business? Proprietor or partner, basically the owner. Partnership में partner is the owner. Introduce capital. The owner of the business is introducing capital in the business. पहला सवाल हमेशा की तरह, कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है जो आ रहा है जा रहा है? कैश आ रहा है कि जा रहा है? किसके एंगल से सोचना है, बिजनेस के कि बिजनेसमैन के? ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाई? बताओ. There is a concept, good, very good. There is a concept in accountancy called as entity concept. There are certain principles, concepts and conventions in accountancy, one of which is entity concept, also known as business entity concept, which says that business and businessmen are separate. ठीक है? Fine. I don't know how to explain this. एक अलग स्टाइल से समझाने की कोशिश करता हूँ. ध्यान दीजिए. आपको OCM में पढ़ाया गया था. All are commerce students here or someone shifted from science here? One. Good. अच्छा है, तो फिर एकदम बेसिक से ही चालू है. You were there in the previous lecture, Saturday. Oh, but have you seen that lecture? Yes, sir. किसी के भाई? I don't know. I think I've heard about him from some well-standard people. You come from reference की ऐसा कुछ? Okay, जनरल लेक्चर कर दिया, अच्छी बात है. हाँ, तो प्राणियों बात सुनो अभी. एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, there is a subject called OCM which you have studied, most of you, and in that हमको बताया था कि बिजनेस करना है तो अलग अलग your form of business. You can do a business as a sole trading concern, a sole proprietorship, single ownership business. You can do business in the form of partnership, or you can form a cooperative society, or you can have a joint Hindu family business, right? Or you can form a joint stock company, कोई बड़ा limited, private limited कोई company form करके कर सकते हो. हर एक के advantages थे, disadvantages थे, blah blah blah, right? Features, advantage, हाँ 11th में किया, बचपन में बहुत साल पहले. Anyways, तो उसमें एक पॉइंट आता था मालूम, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कुछ में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. बताओ, प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी था कि नहीं था? अच्छा हाँ, कोविड के हालात के मारो याद है ना, सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप में डू नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस. No, that is not the reason why their liabilities. एक मिनट, लीगल सेपरेट लीगल स्टेटस या सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है बताता हूं. मैं एज अ सोल ट्रेडर बिजनेस कर रहा हूं, मेरा नाम अलग है, मैंने अपनी दुकान का नाम कुछ अलग रखा, बराबर है. मुझे मेरे बिजनेस के लिए शॉप रेंट पे चाहिए या शॉप खरीदनी है, एग्रीमेंट किसके नाम पे बनेगा, मेरे या मेरे बिजनेस के नाम? मेरे नाम. Because I am a sole trading concern, and sole trading concern में business does not enjoy separate legal status. So you cannot enter into a contract, you cannot buy or do anything in the name of the business. Business in case of a sole trading concern यानी sole proprietorship business में business does not enjoy separate legal status. कानून की नजर में business आपसे अलग नहीं है. बिजनेस के नाम पे आप कोई भी एग्रीमेंट या कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो. इवन पार्टनरशिप, सपोज मी एंड आपका नाम अहमद, फिर अहमद आर,
and Rahmat are partners, and we have started a business in the name of AR Undertakings. बिजनेस का नाम AR Undertakings. हम दोनों तो पार्टनर है. अब अगेन वही सवाल, मुझे जगह खरीदनी है या मुझे किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, बड़ा डील करना है, तो होगा किसके नाम? फर्म के नाम पे या हमारे को? तो अगेन पार्टनरशिप डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस. तो हमको इंडिविजुअल मतलब हमारे कैपेसिटी पे ही जो भी एंटर करना है कॉन्ट्रैक्ट. बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, in case of joint stock companies, they have enjoy separate legal status. Legally उनको ओनर से अलग माना गया. लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न्स को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और आप अलग नहीं हो. बट जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप अलग, बिजनेस अलग, और बिजनेस के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है. समझा? जियो ने अगर मुझे ओवर बिलिंग किया, अरे जियो फोन नेटवर्क ने मुझे अगर ओवर बिलिंग किया, ना लिसन, सपोज वो जियो नेटवर्क वालों ने मुझे ओवर बिलिंग किया, तो मैं केस किस पे करूं? मुकेश अंबानी पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे. Who are the owners of, एक मिनट, Jio is a network which belongs to a joint stock company who is called Reliance Industries Limited, RIL. Who is the owner of RIL? Shareholder. Shareholders are the owners of the joint stock company. Board of directors are not the owners of the joint stock company, they are management. Shareholders लाखों हैं, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं. तो सब रोज रोज मिलेंगे और डिसीजन थोड़ी लेंगे. तो इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया कि भाई हमारे लिए बिजनेस तुम सौंपा. वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट ओनर्स, दे आर मैनेजमेंट. सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इट. अब सवाल ये उठता है कि अगर जियो ने मुझे ओवर बिलिंग किया है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? मुझे केस थोपना है, किस पे थोपना? शेयर होल्डर्स जो ओनर्स है कंपनी के, या मैनेजमेंट कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पे केस होगा? बिकॉज कानून उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन, हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. कानून उसको एक सेपरेट पर्सन मान रहा है, सेपरेट फ्रॉम द ओनर्स. ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू था? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू था. लीगली आपका वो सेपरेट स्टेटस है कि नहीं है? लीगली योर बिजनेस हैज अ सेपरेट एंटिटी, recognized as a separate entity or not, वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू में एवरी बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी, चाहे फिर वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो. लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ को सेपरेट लीगल स्टेटस है, कुछ को नहीं, कुछ टाइप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. बट अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बिजनेस हो, business is separate from the owner. Is that clear? Yes, sir. From accountancy point of view, each and every business is separate from its owner. Account point of view is different, legal point of view is different. How could you thapadiyo ka nahi? हाँ, so is that clear? Yes. तो इसलिए और बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है. कोई भी टाइप का बिजनेस होता है, अकाउंट की नजर से दोनों अलग है. जिसको और इस कंसेप्ट को नाम दिया गया है एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. तो यहां पर भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई ओनर है, घर पे पैसा पड़ा है कि बिजनेस में पैसा है, बिजनेस का घर पे लेके गया या घर से बिजनेस में लेके आया, उसका ही है ना. तो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? बिकॉज
of entity concept which says the owner and business are separate. इसलिए बिजनेस के लिए ओनर भी एक पार्टी है और ओनर के साथ भी अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा. I remember years back, 1999 years back, FYJC का लेक्चर था और एक लड़की ने पूछा, नहीं वो लेट एडमिशन ली थी, फर्स्ट डे था उसका. तब तक हम लोग ने बेसिक समझा के जर्नल के 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे और उस दिन 3 नए एडमिशन हुए थे. सबरीना, राघव एंड कुणाल खेमू. हाँ, वो एक्टर. हाँ, रिलायबल में था. अभी भी उसके पेरेंट्स सेक्टर 5, सॉरी सेक्टर 3, उसके बाजू वाला कौन सा बिल्डिंग होगा उसमें रहते हैं, इधर अपना सृष्टि सेक्टर. उसकी छोटी बहन करिश्मा भी इधर ही थी. एनीवेज पॉइंट वो नहीं है. तो सबरीना आज भी मैं लिखवा रहा था, उसका फर्स्ट डे था और मैं साइड में आदत है जर्नल के हर रोज आके साइड में रूल लिखता था बोर्ड पे, आदत थी मेरी. और फिर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करता था, एक एक क्यों रूल बता के. तो वो ट्रांजैक्शन आया, पहला ही था, स्टार्टेड बिजनेस विद ये जर्नल. मैंने ऊपर लिखा था जर्नल ऑफ मिस्टर सोएल. फिर और लिखा था सी स्टार्टेड बिजनेस विद इतना अमाउंट. तो उसने बोला कि हम उसका जर्नल बना रहे हैं तो पैसा तो उसके पास से गया ना बिजनेस में, मनी गोज आउट करके क्रेडिट करो. ठीक है, तो क्रेडिट करो. उसने गलत सोचा कि बराबर सोचा, बट उसने ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से. मैंने उसको बोला कि तुम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हो. उसके घर की बुक्स में उसने ये एंट्री पास की. उसने मुझे एंट्री बताई, मालूम, पूरी रूल यूज करके. इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस टू कैश, परफेक्ट एंट्री. ओनर के पास से पैसा गया, गोज आउट क्रेडिट, और बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस डेबिट टू कैश, परफेक्ट एंट्री. रॉन्ग नहीं था. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. बट वो एंट्री वो अपने घर पे करेगा, हमको यहाँ बिजनेस के. And all throughout the year, she was very impressive with the doubts that she used to ask. I forced her into doing CA. She never wanted to. I pushed her into doing CA. She was very happy to do BMS in Mitibai College after 12th. उस जमाने में BMS नया स्टार्ट हुआ था और उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होती थी क्योंकि सीट्स कम थे और बहुत सारे लोग, क्रेज था. बीकॉम के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास तक उस जमाने में. पहला ऑप्शन आया था BMS और खाली कुछ ही कॉलेजेस को परमिशन थी 60 स्टूडेंट्स लेने और अप्लाई करने वाले बहुत थे. तो एंट्रेंस एग्जाम थी BMS की. उसने वो क्लियर भी कर दिया, उसको एडमिशन भी मिल गया मिटिबाई. उसको मिटिबाई चाहिए था, वो 11th-12 मिटिबाई वाला. और नेक्स्ट डे वो पैसा भरने जाने का था. मैंने मॉम को उसके कॉल किया, जब उसका कल बीकॉम में पैसा भर के आना मिटिबाई में, ये लड़की सीए करेगी. हो गया सीए, ऐसा फटाफट हो गया उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में. हाँ, अभी भी सुनाती है क्या, मतलब कैसे, मतलब वो जब सीए फाइनल में थी तब ऐसे ही मिलने आई थी और तब कोई सीए इंटर का बच्चा मेरे को डाउट पूछने आ गया. वो एक लड़की डाउट पूछने आ गई, नमिता भतीजा डाउट पूछने आ गई. सबरीना उसको देखी बोलते तेरे को भी सर ने फंसाया. तो लिटरली ऐसा. Anyways, now she is a big brand in herself. She runs a big chain of, let it be. इंस्टा पे देखो मालूम पड़ेगा, लिटिल योगीज टाइप करो, लिटिल योगीज. big franchises all over. अभी now they are also starting franchise in Goa. Anyways, कहने का मतलब हमको किसके एंगल से सोचना है,
बिजनेस एंटिटी कंसर्न। तो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है? आ रहा है। कम्स इन डेबिट व्हाट कम्स इन A3 का रूल यूज करके कैश आ रहा है। कितना है भैया अमाउंट? 60,000 6,000 बचा प्रीवियस वाले का था। अच्छा, और कोई बिजनेस के अंदर प्रॉपर्टी आ रही है जा रही है? तो हमारे फेवरेट रूल से हमको सिर्फ क्या मिला? डेबिट मिला। अब क्रेडिट या तो ऊपर या तो नीचे। ऊपर कौन? पर्सन। पर्सन कौन है यहाँ? ओनर, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को इन दोनों में से कोई B1 B2 में से रूल अप्लाई हो रहा है क्या? यस और नो? कौन सा? B1, क्योंकि ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है। आज नहीं तो कल जब भी बिजनेस बंद होगा हमको उसको उसका पैसा वापस देने का है। whenever this business gets dissolved, liquidated, wound up, at that time हमको उसको उसका पैसा वापस देने का है। देने का है, देने का है। दे सी सी मतलब वो हमारा क्या बन गया? तो when a person becomes creditor उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ओनर becomes creditor of the business तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो या तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल लिखो या सिर्फ कैपिटल लिखो चलेगा। बट कैपिटल प्रोप्राइटर जो भी नाम होगा उसका कैपिटल, अजय कैपिटल, जो भी नाम होगा उसका कैपिटल। बट रिमेंबर कैपिटल इज विच अकाउंट नाउ? B1 मतलब कौन सा रूल यूज किया हमने? रियल, नॉमिनल या पर्सनल? तो कैपिटल इज विच अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नरेशन बाद में मैं एक साथ होलसेल में लिख देता हूँ। लेट द फ्लो गो इन। 6 परचेज गुड्स फ्रॉम रूपा 28,000 ऑन credit. We have purchased goods but on credit, so we have not paid immediately, right? We are just purchasing now, we are not paying it on immediately, we will pay later. कौन सा प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है? गुड्स। आर आई की 4 है। कम्स इन या गोज आउट? कम्स इन तो डेबिट या क्रेडिट? तो हाँ बस भाई डेबिट। गुड्स का कौन सा अकाउंट? डेबिट। गुड्स के 4 अकाउंट होते हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। यहाँ पर गुड्स आर परचेज तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया है। ठीक है, एक्चुअली स्पीकिंग गुड्स अकाउंट है और गुड्स आ रहा है कम्स इन, इसलिए हमने डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल यूज किया। बराबर है? तो परचेज अकाउंट असली में कौन सा अकाउंट है? गुड्स इज विच अकाउंट? रियल अकाउंट। बट हम लोग गुड्स में लिखते हैं, उसके बदले ये 4 में से कोई एक लिखते हैं। क्या? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स। लास्ट टाइम मैंने बताया था गुड्स अकाउंट इज रियल अकाउंट, लेकिन जब हम उसके 4 टुकड़े करते हैं, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट 4 अकाउंट, तो वो क्या हो गए? नॉमिनल, बिकॉज परचेज एक्सपेंस होता है, सेल्स इनकम होता है। हाउएवर रूल में अभी भी भले लिख रहा हूं परचेज, लेकिन मैंने रूल नॉमिनल का नहीं यूज किया। और इसे अपना A1 A3 B3 सबसे इजी है कम से कम, तो मैं रूल भले ही रूल यूज कर रहा हूं रियल का, बिकॉज वो इजी है। ठीक है, ओके। हैव यू पेड? दो। तो अभी मेरे को क्रेडिट चाहिए। डेबिट मिल गया, गुड्स आ रहा है, परचेज किया, कम से डेबिट। क्रेडिट अब ऊपर या तो नीचे से मिलेगा, बिकॉज ये रूल से नहीं मिला। लेट्स टॉक ऊपर पहले। पार्टी, पार्टी का नाम है रूपा। रूपा को B1 B2 कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? अभी अभी मैंने उससे गुड्स खरीदा है, तो मुझे उसको फ्यूचर में पैसा देने का है ना। दे सी, देसी लेडी ना, देने का है तो देसी। सी मींस क्रेडिटर, लेने का है तो लेडी, डी मींस डेटर। अगर मैंने उससे अभी अभी गुड्स खरीदा है, मुझे उसको पैसा देने का। ओए ये भी इधर है, दिख भी नहीं रही। हाँ, एनीवेज, तो मुझे उसको पैसा देने का है, तो वो मेरी क्या बन गई? एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स क्रेडिटर उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो रूपा बिकम्स क्रेडिटर, क्रेडिट। हाँ, B1। हाँ, व्हाट हैपेंड? कल शेट्टी, आज क्या? 7th, इंटरेस्ट रिसीव। ए, इंटरेस्ट कोई चीज है कि मिला दे, किसको इंटरेस्ट बोलते हैं? ये ले, क्या मिला? क्या आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, कम्स इन डेबिट। तो कैश आ रहा है, कम्स इन डेबिट A3। अमाउंट 250। ओके, तो कैश
कैश आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव तो कैश आ रहा है, कम्स इन डेबिट। और कुछ आ रहा है जा रहा है ना, तो कम्स इन गोस आउट वाला रूल यूज हो गया। डेबिट मिला, क्रेडिट नहीं मिला, तो क्रेडिट के लिए या तो ऊपर जाओ या तो नीचे। पार्टी कौन है यहाँ? कोई नहीं दिखाया, छोड़ जाने दे, तो नीचे आ जाओ। क्या ये इनकम या गेन है? हाँ, इंटरेस्ट रिसीव तो इट इज अवर इनकम, सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन बी 4। Fine, guys. So, what happened? हाँ ठीक है, guys and bells ready? Received 7,000 from Annu on account. Guys, अन्नू से 7,000 मिला, क्यों मिला? ऐसे ही मैं रास्ते में जा रहा था, उसने बोला ऐसा ऐसा, नहीं तो क्यों मिला उससे? पहले का कुछ बाकी होगा। जरा देखो, इससे पहले अन्नू हमारी जिंदगी में आई थी कौन से पॉइंट पे? थर्ड पॉइंट में हमने उसको गुड्स बेचा था, कितने का? 20,000 का बेचा है क्रेडिट पे, तो मुझे उससे 20,000 लेने का भाई। वो तो सिर्फ 7,000 दे चली गई। नहीं, बाकी का क्या? 13,000 का क्या? बाकी का डिस्काउंट हो सकता है। अगर ऐसा लिखा होता रिसीव 7,000 फ्रॉम अन्नू इन फुल सेटलमेंट, अगर ऐसा लिखा होता इन फुल सेटलमेंट, तो मतलब अभी ये 7,000 ले और मामला सेटल समझ, बाकी का 13,000 भूल जाए, तो फिर वो डिस्काउंट हो। लैंग्वेज पे तवज्जो दे। लेकिन यहाँ लिखा ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब अभी उसके हिसाब में इतना जमा रखो, बाकी का बाद में देखेंगे, डिस्काउंट नहीं है। अंडरस्टूड? अभी मेरे खाते में इतना जमा कर दो, बाकी का बाद में देखेंगे, ऑन अकाउंट खाते में ऐसा। तो फिलहाल अन्नू आई और 7,000 देके चली गई। कुछ आ रहा है जा रहा है? कैश आ रहा है, कम से नहीं गोज आउट, तो डेबिट या क्रेडिट? A3 या B3? ओके, तो कैसा कैश आ रहा है, कम्स इन डेबिट। ठीक है। अनु मेरी कौन थी? डेटर थी, मैंने उसको गुड्स बेचा था, मुझे उससे पैसा लेने का था, वो मेरी डेटर थी 20,000 की, उसमें से वो 7,000 देके चली गई, तो 7,000 के लिए वो डेटर बनी कि 7,000 के लिए वो डेटर नहीं रही? बिकम्स डेटर और सीजेस टू बी डेटर, सीजेस टू बी डेटर, B2 क्रेडिट, बरोबर? इसको क्रेडिट, बिट्टू नहीं अन्नू को। अच्छा, अब क्या अभी भी अन्नू मेरी डेटर है? कितना बाकी है? 13,000 इज स्टिल लेफ्ट, तो अभी भी वो मेरी डेटर है रिमेनिंग 13,000 के लिए। 9th, goods returned to रूपा। वी आर रिटर्निंग गुड्स टू रूपा या goods returned by रूपा या टू रूपा? क्या लिखा है? टू रूपा। goods returned to रूपा, तो वी आर रिटर्निंग गुड्स टू हर। गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? कम से या गोज आउट? तो डेबिट या क्रेडिट? तो गुड्स जा रहा है, गोज आउट, क्रेडिट करना चाहिए। गुड्स का कौन सा अकाउंट? क्रेडिट। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। अरे कितना गया? वो ओके, हमने रूपा को गुड्स रिटर्न कर दिया। क्या इससे पहले रूपा हमारी जिंदगी में आई थी? 6 तारीख, 6.6 हमने उससे गुड्स खरीदा था, हमको उसको पैसा देने का था। दे सी, वो मेरे कौन थी? कितने रुपए के लिए? 28,000 के लिए वो मेरी क्रेडिटर थी। मुझे उसको 28,000 देने का था, मैं उसको 4,000 के गुड्स रिटर्न कर दिया, तो 4,000 में उसको ज्यादा दूंगा कि 4,000 हम काट ले, कम देंगे? हाँ, तो 4,000 के लिए वो मेरी और क्रेडिटर बनी या क्रेडिटर नहीं रही? सीजेस टू बी क्रेडिटर, A2 सीजेस टू बी क्रेडिटर, तो उसको डेबिट। ओए
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री नमूने ₹150। पहले अपना पहला सवाल क्या है? कुछ आ रहा है, जा रहा है? क्या जा रहा है? कम्स इन या गोज आउट? तो डेबिट या क्रेडिट? गुड्स जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। कितने का? 150, राइट? गुड्स जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। गुड्स का कौन सा अकाउंट क्रेडिट? गुड्स का कौन सा अकाउंट क्रेडिट? एक्चुअली ये परचेज है क्या? परचेज रिटर्न है क्या? ये सेल है? सेल्स रिटर्न है। लास्ट टाइम मैंने बोला था, वापस बता रहा हूं कि जब चार में से कुछ भी ना हो तो क्या लिखना? तो परचेजेस लिखने। रीजन भी बताया था, जब इन गुड्स को खरीदा होगा तब परचेज अकाउंट में डाला होगा। गुड्स किसको बोलते? डिफाइंड गुड्स, जो बेचने के लिए खरीदा वो गुड्स है। तो खरीदते वक्त थोड़ी मालूम था मैं फ्री में पाटेगा, नहीं मालूम। तो खरीदते वक्त मैंने ये सोचा था कि बेचने के लिए खरीदा है, तो मैंने परचेज अकाउंट में डाला होगा। परचेज अकाउंट में गुड्स आ रहा है, कम्स इन, डेबिट किया होगा, कम्स इन। लेकिन अब पता चला वो बेचने के लिए नहीं है, वो तो फ्री सैंपल पार्टी है, तो अभी वो गुड्स नहीं रहा, इसलिए परचेज अकाउंट में से उसको निकालना पड़ेगा ना, इसलिए क्रेडिट। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, तो गुड्स जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट हो गया। अब डेबिट तो कुछ मालूम मिलने पड़ा, तो डेबिट ऊपर या नीचे? जिस पार्टी को हमने फ्री सैंपल दिया है, क्या वो हमारा डेटर बना? हमको उससे फ्यूचर में पैसा लेने का है? नहीं, वो डेटर नहीं बना। क्या वो पहले का मेरा क्रेडिटर था, मुझे उसको पैसा चुकाना था, इसलिए मैंने उसको फ्री सैंपल दिया, वो सीजीएस टू बी क्रेडिटर का लफड़ा है? तो वो भी नहीं है। क्या हमने फ्री में बांटा? ये हमारा एक्सपेंस एंड लॉसेस है? यस, एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस A4। इस एक्सपेंस को नाम क्या दे भाई? एडवर्टाइजमेंट। A4 का फाइन। 11 अन्नू फिर से आई। अन्नू रिटर्न गुड्स, वी आर रिटर्निंग टू हर और शी इज रिटर्निंग टू हर। तो कुछ आ रहा है, जा रहा है? क्या आ रहा है? कम से या गोस आउट? तो डेबिट या क्रेडिट? गुड्स आ रहा है, कम से डेबिट। गुड्स का कौन सा अकाउंट है? वो हमको गुड्स रिटर्न कर रही है, मतलब पहले हमने उसको गुड्स बेचा होगा। अमाउंट बराबर 6। ओके, तो गुड्स आ रहा है, कम से डेबिट। ह्यूमंस, अन्नू इज रिटर्निंग गुड्स टू अस, तो गुड्स आ रहा है, कम से डेबिट। और कुछ आ रहा है, जा रहा है? नहीं। तो हमारे फेवरेट रूल से कम्स इन गोज आउट वाले से हमको सिर्फ क्या मिला? डेबिट मिला। क्रेडिट पे जाना पड़ेगा। पर्सन ऊपर, पहले टू ऊपर ट्राई मारते हैं। अन्नू, उसने गुड्स रिटर्न कर दिया, तो क्या मुझे उसको पैसा देने का? वो बिकम्स क्रेडिटर? नो, हमने उसको गुड्स बेचा था, हमको उससे पहले का पैसा लेने का था। वो हमारी कौन थे? लेने का था ना, लेडी। देसी लेडी, लेने का तो लेडी डेटर थे। अनु हमारी कौन है? डेटर। और अब उसने गुड्स ही रिटर्न कर दिया, तो उतना पैसा वो ज्यादा देगी या कम? तो उतने रुपए के लिए शी बिकम्स क्रेडिटर और शी इज टू बी डेटर। शी इज टू बी डेटर। 12 paid 7,502 rupees in settlement of 8,000। 8,000 के सेटलमेंट में 7,900 देके आ गए। मतलब हम उसको बोले ये ले 7,900, लेकिन ये समझ के मैं कितना सेटल कर दिया हूँ, तो रिमेनिंग 100 बाद में देना है कि नहीं देना? क्या समझ रहे? कुछ आ रहा है, जा रहा है? कैश हाउ मच? कैश इज गोइंग आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? 7,900। करेक्ट, 7,900 जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। यस।
ओके गाइस, तो बस कैश आ रहा है, गोस आउट क्रेडिट हो गया, और कुछ आ रहा है नहीं, तो फिर लेट्स चेक। पार्टी यहां कौन है? रूपा। दोनों में से कोई रूल यूज हो रहा है? 6.6 पे हमने उससे गुड्स परचेज किया था 28,000, तो हमको उसको पैसा देने का, वो हमारी कौन थी? और हम उसको अभी थोड़ा पैसा दे के आ रहे हैं, तो अब वो हमारी क्रेडिटर बनी या सीजी टू बी क्रेडिटर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीज टू बी क्रेडिटर फॉर 7,900 और सीजीज टू बी क्रेडिटर फॉर 8,000। 8,000 सेटल कर दिए ना, 7,900 दिया उसको और बोला कि भाई 8,000 सेटल करो, तो वो 7,900 के लिए क्रेडिटर नहीं रहेगी 8,000, समझे? सीजीज टू बी क्रेडिटर फॉर एंटायर 8,000, क्लियर? कौन है वो? रूपा। एंट्री अधूरी लग रही, चलेगी? चलेगी, अधूरी एंट्री चलेगी, क्या समझ रहे? रूपा चलेगी थोड़ी, पूछ कर। एंट्री में 100 का डिफरेंस लग रहा है, आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? वेरी गुड, हमारे फीलिंग्स कितने मिलते थे। ओके, 100 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है और क्रेडिट कम पड़ रहा है, क्रेडिट कम पड़ रहा है। हमने पर्सनल का रूल देख लिया है, रियल का तो पहले ही देख लिया, क्रेडिट अभी बचा तो इनकम एंड गेन। हमने 7,900 देके 8,000 मामला सेटल कर दिया, तो हमको 100 रुपया लॉस हुआ या गेन हुआ? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड B4, हमको डिस्काउंट मिला है, इट्स आवर इनकम, यप, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड 14, 13, तो मैंने नंबरिंग में गड़बड़ की है, हाँ 13। पेड फ्रेट 350 ऑन बिहाफ ऑफ रमेश। कोई चीज आ रहा है जा रहा है? We are paying freight, right? तो cash is credit what goes out. We are paying freight, cash is going out, credit what goes out. चलो भाई, क्रेडिट मिल गया, और कुछ आ रहा है जा रहा है? नहीं, तो अभी डेबिट चाहिए, हाँ या ना? डेबिट ऊपर या नीचे? पार्टी रमेश है, क्या रमेश को A1 A2 में से कोई रूल यूज हो रहा है? कितनों को लग रहा है A1, कितनों को लग रहा है A4? How many say A1? How many say A4? मैं कोई तीसरा ऑप्शन देने वाला नहीं था, तो बाकी के लोग हाथ ऊपर करने के लिए किसके लिए रुके थे? पास? ऐसा करेगा रिजल्ट आएगा, पास नहीं, रिजल्ट देख के बाईपास कर। क्वेश्चन पढ़ने का एक्टिंग करते वापस। पेइंग फ्रेट, हमने फ्रेट पे किया, फ्रेट एक्सपेंस है, बट क्वेश्चन में आगे लिखा ऑन बिहाफ ऑफ रमेश, रमेश के लिए मैंने पे किया, मेरा खर्चा थोड़ी था। आई एम पेइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ रमेश, तो रमेश का खर्चा है कि मेरा? और उसके बिहाफ पे मैं पे कर रहा हूँ, मेरा खर्चा है, तो पूरे गांव का खर्चा लिखेगा, पूरे गांव का खर्चा मैं रिकॉर्ड करूं? नहीं, तो मैं एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करूंगा, इसलिए A4 में ही है। मैंने रमेश के लिए खर्चा किया है उसके बिहाफ पे, तो मुझे उससे पैसा लेने गए, वो मेरा क्या बन गया? और जब
कोई डेटर बन जाए तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। A1। 14 received 1900 from Anu in settlement of 2000। अनु आई, उसने मुझे क्या दिया, 1900, लेकिन सेटल कितना करके चली गई, ऐसा 1900 थमाई और 2000 सेटल करके चली गई। मतलब आई थी 2000 सेटल करने, 1900 थमा के बोली बराबर है बराबर है भाई साहब। ऐसा मम्मी वो लास्ट में सब्जी वाले का 84 रुपए हुआ, 80 रुपए बराबर है बराबर करके निकल जाती। क्या 100 ऑफ, हाँ डिस्काउंट। received 1900 from Anu in settlement of कुछ alright क्या alright, come goes out, credit, तो cash alright comes in debit। yes A3। एनीवेज अन्नू आई और पैसा देके चली गई, पैसा दे गई, डिस्काउंट ले गई है ना दोस्त, सही। अच्छा अन्नू आई, पैसा सेटल करके चली गई, वैसे अन्नू मेरी कौन थी, मुझे उसको पैसा देना था कि उससे लेने का था, कि वो मेरी कौन थी, आगे पैसा देके चली गई, अब वो मेरे डेटर नहीं रहे, ceases to be debtor, yes ceases to be debtor when a person ceases to be debtor, उसको क्या करेंगे। अच्छा प्राणियों, वो मेरी डेटर नहीं रही 1900 के लिए कि पूरे 2000 के लिए, पूरे 2000 के लिए वो मेरी डेटर नहीं रही। एंट्री अधूरी है, चलेगी, ceases to be debtor B2। जब वो मेरे को पैसा देने आई ना तो मैंने भी उसको कुछ दिया, डिस्काउंट आया ना, तो ये डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस है इनकम, डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस है इनकम है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट अलाउड लिखूं या रिसीव, बोलना ओके ए उंदा ओके ह्यूमन 15 छगन કેટલી छगन paid 450 advertisement on our behalf। कुछ आ रहा है जा रहा है, कुछ आ रहा है जा रहा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, छगन पेड, we have not paid। अच्छा he paid to us, पैसा आ रहा है तो पैसा जा रहा है, हमारे पास से पैसे जा रहा है, तो कुछ भी नहीं आ रहा है यार, जा रहा है। हाँ तो ह्यूमंस एंड मिसलेनियस लिसन हियर, छगन
ने हमारे बिहाफ ऑन आवर बिहाफ उसने पे किया, हमारा पैसा नहीं किया, हमारे लिए वो पे कर, अग्रीड ना। तो हमारे पास ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है, कम से गोज आउट वाला रूल नहीं। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं मिला हमारे फेवरेट रूल से। तो अब जो भी है ऊपर या नीचे कौन है, छगन है ना। अच्छा छगन को अभी A1 A2 B1 B2 कोई रूल यूज हो रहा है, कौन सा, he is paying on our behalf so we will have to pay, हमको उसको पैसा देने का है, दे सी, वो मेरा क्या बन गया। जब कोई क्रेडिटर बन जाए तो उसे क्रेडिट करना, कौन है वो, छगन। कितना देना है हमको उसको, 450। he is paying advertisement, उसका खर्चा वो पे कर रहा है कि हमारा खर्चा, तो हमारा है ना। तो हमको हमारा खर्चा हमारे बुक्स में दिखाना है, एक्सपेंस है हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये खर्चा हमको दिखाना है हमारे बुक्स में। A4 received 9,000 from Anu in full settlement, नहीं इन फुल सेटलमेंट। तो अभी इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, अगर कुछ बाकी होगा इसके बाद तो उसे क्या समझना है। तो फिर अभी ये तो पता लगाओ कि एक्चुअली कितना बाकी था। नहीं नहीं रुक बच्चा, ऐसा मत देख, 3 तारीख को हमने उसको 20,000 के गुड्स बेचे थे, तो हमको उसको 20,000 लेने का था। 20,000 में से अनु 7,000 पहले देके गए, we have received 7,000, तो अभी बचा 13 में से उसने 1,000 के तो गुड्स ही रिटर्न कर दिए थे, 12,000। उसके बाद अनु 2,000 और सेटल करके गई थी, 10,000 सेटल करके जा रही है, फुल सेटलमेंट में सिर्फ 9,000 दे गई। इज दैट फाइन। We are receiving 9,000 in settlement of how much? We are receiving, so money comes in how much? Yes, A3 पैसा और राइट comes in there। और अब वो हमारी वो नहीं रही, वो डेटर नहीं रही, सीजेस टू बी डेटर, तो उसको क्रेडिट B2 सीजेस टू बी डेटर। कितने रुपए के लिए डेटर नहीं रहा, 9,000 या 10,000? ऑन अकाउंट लिखा है कि फुल सेटलमेंट? ऑन अकाउंट नहीं लिखा है, वरना 9,000 बाकी का 1,000 बाद में। अच्छा वो सिर्फ 9,000 देके चली गई, मुझे उसको क्या देना पड़ा, आसिफ भाई हमने उसको क्या दिया बोलो, ये डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस हुआ है, इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। 17 paid 9,000 to रूपा ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट है, इन फुल सेटलमेंट नहीं, तो बाकी का डिस्काउंट है कि नहीं, नहीं है ना। ओ मैडम छुपा, रूपा रूपा
So we are paying rupees 9,000 on account. Cash goes out. Credit what goes out to cash जा रहा है, goes out. और मैंने ये किसको दिया? रूपा. क्यों दिया? ऐसे रूपा को दिया. रूपा लेना ऐसा तो क्यों दिया हमने उसको? क्योंकि हमको पहले का कुछ उसको देने का था. देने का था मतलब वो हमारी कौन थी? दे सी. वो हमारी कौन थी? और अब हमने उसको पैसे दिए तो उतने रुपए के लिए हमारी क्रेडिटर नहीं रही. सीजेस टू बी क्रेडिटर. एंड व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी क्रेडिटर उसको क्या करते हैं? डेबिट. है ना? बोलो बोलो. एंट्री कंप्लीट है. 9,000. हाँ रूल नहीं लिखा है. हाँ B3 और वो हमारी क्रेडिटर नहीं रही. 8-2. अरे सोच लो कहाँ था मैं अभी. 18. Goods of 300 and cash 900 taken by the proprietor for personal use. Correct. सारा शहर इसे ड्राइंग्स के नाम से जानता है. क्या ड्राइंग्स ही है? हाँ या ना? अनु आई मीन आनंद. अपने को बिजनेस के एंगल से सोचना है कि ओनर के. बिजनेस में ये दोनों चीज जा रहा है कि बिजनेस में से घर पे जा रहा है. कम से ने गोज आउट. गुड्स और कैश जा रहा है. गोज आउट क्रेडिट. गुड्स जा रहा है. गोज आउट क्रेडिट. कैश जा रहा है. गोज आउट क्रेडिट. गुड्स कितना जा रहा है? 300. कैश कितना जा रहा है? 900. गुड्स का कौन सा अकाउंट? क्रेडिट. गुड्स का 4 अकाउंट होता है. परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स. उसमें से क्या है? एक्चुअली ना ये परचेज है, ना परचेज रिटर्न है, ना सेल्स है, ना सेल्स रिटर्न. और जब चारों में से कुछ ना हो तो परचेज लिखते हैं. बरोबर है. तो ये दोनों चीज जा रहा है. गोज आउट क्रेडिट. अब डेबिट कितो. एक मिनट. ये बोल रही है ड्राइंग. कौन से रूल से मैडम? इन्हें रूल बताओ. क्रेडिट मिल गया है, डेबिट चाहिए. डेबिट या तो ये या तो ये. A1, A2 या A4. बिजनेस का एक्सपेंस है ये. नहीं नहीं, बिजनेस का एक्सपेंस है क्या ये? बिजनेस का एक्सपेंस या लॉस है ये? नहीं. A2 ओनर ने जब बिजनेस में कैपिटल लगाया था, सीधा थर्ड पॉइंट नहीं, फोर्थ पॉइंट नहीं, फिफ्थ पॉइंट, जब वो कैपिटल लेके आया था तो हमने उसको अपना क्रेडिटर मान के B1 रूल यूज किया था कि भाई अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो कभी ना कभी ये धंधा जब भी बंद होगा हमको आपको उसका पैसा वापस देने का है. तो आप हमारे क्या बन गए? क्रेडिटर. इसलिए हमने आपको क्या किया? क्रेडिट. हमको आपको पैसा, आपने बिजनेस में पैसा लगाया, वो पैसा हमको आपको वापस देने का है कभी ना कभी. देने का मतलब आप हमारे क्रेडिटर थे. उसमें से थोड़ा आप अभी लेके चले गए तो उतने रुपए के लिए आप हमारे क्रेडिटर. ceases to be creditor. तो ओनर ceases to be creditor, इसलिए प्रोप्राइटर डेबिट. बट हम प्रोप्राइटर नहीं लिखते. या तो कैपिटल लिखते हैं या तो ड्राइंग्स लिखते हैं. यहाँ क्या आएगा? 1200 ड्राइंग्स. Understood? 19. Wow. Rent is due but not yet paid. Due हो गया, पे करना. चढ़ गया. हाँ
हमारे सर पे रेंट चढ़ गया है बट अभी तक हमने पे नहीं किया है। आया ना? यस और नो? रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है कि रेंट ड्यू बट नॉट पेड है? वाह, पूरा मीनिंग उल्टा हो जाएगा भाई। रेंट ड्यू हो गया है, अभी तक हमने कुछ आ रहा है जा रहा है? हाँ, एनीवेज, तो रेंट ड्यू हो गया है बट अभी तक हमने पे, तो कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। कमसिंग गोज आउट से ना डेबिट मिला ना क्रेडिट, तो अभी डेबिट क्रेडिट ढूंढने के लिए पर्सनल या नॉमिनल वाला रूल यूज करना पड़ेगा। हेल्प मी प्लीज। B1, हमको किसी ना किसी को पैसा देने का, लैंडलॉर्ड को पैसा देने का। अभी उसका नाम नहीं दिया तो लैंडलॉर्ड लिखेंगे ना। देना बाकी है ना, नॉट पेड, तो देना तो है ना, किसी न किसी को तो देना। देने का है तो वो हमारा क्या बन गया? एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स क्रेडिटर क्रेडिट, तो चलो B1 का रूल यूज हुआ और हम लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करेंगे। उसका नाम दिया होता तो अच्छा है, नहीं दिया है। रुको ना, सुनो तो मैडम, रुको ना, नहीं लिख रहे थे अमाउंट। B1 tell me, understood? अच्छा, और कोई रूल यूज हो रहा है? अभी तो अधूरा है भाई, अभी भी एंट्री में क्रेडिट मिला, डेबिट मिला ही नहीं। रेंट हमारा एक्सपेंस है कि इनकम है? देख जरा, क्यों हो गया है? पे नहीं किए, खर्चा कर दिया है, पे नहीं किया, ऐसा? हाँ हाँ, खर्चा खर्चा कर लिया है, पे नहीं किया है। मैंने गलत नहीं बोला, सही बोला, क्वेश्चन ही पढ़ के बोला, हिंदी में अनुवाद करोगे। We have incurred the expense but not yet paid. You understand incurred? Incurred मतलब दही में नहीं, खर्चा अक्रू हो गया है, ड्यू हो गया है बट अभी तक पे नहीं किया, तो क्या हुआ? खर्चा ड्यू हो गया है ना, खर्चा मानो एक्सपेंस में डालो A4। अब लेट मी चेक, एनी वन ऑफ यू कैन आंसर मी। जब पे नहीं किया तो मैं खर्चा क्यों मान रहा हूं? कौन सा रूल? रूल का नाम याद है किसी को? नाम नाम, रूल का नाम, रूल। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर पे करूंगा, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पे करूंगा, तो तब खर्चा मान लूंगा ना।
नाम क्या है? अक्रूवल कंसेप्ट। एनीवेज ये आगे जाके एक चैप्टर में मैं सारे कंसेप्ट समझाऊंगा, ये जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल, जैसे वो एंटिटी कंसेप्ट, वो भी उसमें डिटेल में आएगा वापस। ठीक है, अक्रूवल कंसेप्ट नाम का कंसेप्ट है जो ये बोलता है कि एक्सपेंसेस इनकम्स are supposed to be recognized in your books of accounts in the period in which they accrue, not in the period in which money is received or paid. पैसा कब आया गया इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा कब आया गया इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से पीरियड का खर्चा है या इनकम है उस पीरियड में उसको रिकॉर्ड। इज दैट ओके? फाइन। अच्छा, या आई कैन राइट हियर लैंडलॉर्ड की जगह पर आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। लैंडलॉर्ड पार्टी है, पर्सनल अकाउंट है, बराबर है। अगर मैं वो नहीं लिखता और उसके बदले आउटस्टैंडिंग रेंट लिखता तो आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सा अकाउंट? आउटस्टैंडिंग रेंट इज रियल, नॉमिनल और पर्सनल। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस है कि रेंट एक्सपेंस है? आउटस्टैंडिंग रेंट की बात चल रही है। आउटस्टैंडिंग रेंट मेरा ना एक्सपेंस है ना इनकम, वो पर्सनल है। रेंट नॉमिनल है, आउटस्टैंडिंग रेंट नॉमिनल नहीं है, पर्सनल अकाउंट। और एक और बात याद रखना, पर्सनल अकाउंट लैंडलॉर्ड की जगह पर उसको लिखा है ना, तो दैट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द अकाउंट। एक्चुअली लैंडलॉर्ड लिखना चाहिए था, जो कि एक पर्सनल अकाउंट है, उसके बदले ये लिखा है ना, तो इसका उससे वो पर्सनल का रियल नहीं बन जाता या नॉमिनल नहीं बन जाता, वो पर्सनल ही रहेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इन जनरल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच अकाउंट, अभी तो बता रहा है पर्सनल। इनफैक्ट कुछ लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट के भी कई पार्ट्स होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा टाइप है ये? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। Is that fine? Yep. रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो एक मिनट, अभी इससे एक बात समझ में आनी चाहिए। मैंने ना लास्ट टाइम भी बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते जा रहा था लेक्चर के बीच बीच। आई डोंट नो आप में से कितनों को आदत है वो कहीं ना कहीं लिख लेने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी अभी पता चला कौन सा अकाउंट है, एंड वेरी मोर स्पेसिफिक, रिप्रेजेंटेटिव। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही नहीं, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, ये सारे किसी न किसी पार्टी के नाम के बदले लिखे जाते हैं। ऑल दीज आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। Can any one of you think of any other account which can be said to be representative personal account because it represents a personal account? Any one of you can think of any other example? Just accrued, वो आउटस्टैंडिंग इनकम या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही हुआ ना, नाम बता रहे हो। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट की जगह मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला, एक ही बात। एडवर्टाइजमेंट इज नॉमिनल, वो पर्सनल है ही। एक बात, इंश्योरेंस क्लेम, मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने का है तो इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स माय डेटर, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करना चाहिए कि नहीं? बट अगर मैं उसके बदले इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट लिख दिया
तो है वो पर्सनल अकाउंट इंश्योरेंस कंपनी के बदले लिखा है, इंश्योरेंस क्लेम, बट इट बिकम्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. Is that clear? 20. कमीशन ड्यू बट नॉट पेड नहीं है, नॉट ड्यू हो गया लेकिन तो मिला नहीं. मैंने भाई साहब के लिए कुछ काम करके दिया और मुझे अभी इससे कमीशन लेने का है, बट अभी तक मिला नहीं. मैंने कमा लिया है लेकिन अभी तक मिला नहीं. बराबर. तो कुछ आ रहा है जा रहा है, कुछ आ रहा है जा रहा है नहीं. तो भाई रियल अकाउंट के रूल से हमको कुछ नहीं मिला. हमको किसी से पैसा लेने का है, वो हमारा क्या बन गया, तो हम उसको क्या करेंगे, तो वो पार्टी जो भी है उसको मैं डेबिट करूँ. पार्टी का नाम नहीं दिया क्वेश्चन में, बट जो भी होगा उसको मुझे डेबिट करना है. बराबर है. पार्टी का नाम नहीं दिया है तो मैं आउटस्टैंडिंग इनकम लिख रहा हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बोला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम आर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, यानी पर्सनल अकाउंट. वो पर्सनल अकाउंट के बदले ये लिखा है. और वो इनकम है ना, नॉट रिसीव्ड, मिलने वाला है तो इनकम है. अच्छा इनकम है क्या, क्या कौन सी इनकम है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स अमाउंट. 21. पेड रुपा 6,800 इन फुल सेटलमेंट. इन फुल सेटलमेंट बोला मतलब जरूर कुछ डिस्काउंट होगा, है ना. तो अब रूपा की कुंडली निकाले. सबसे पहले रूपा, we have purchased goods from rupa 28,000, so we have to pay rupa 28,000. Out of that 4,000 goods we return back to her. Still how much payable, 24. Then on 12th out of 24, 18,000 was set, 8,000 was settled, 16,000 still remains. Then out of 16,000, 9,000 was also paid on account. How much remains, 7,000. And now we are paying her 6,800 in settlement of that 7,000. इससे पता चल गया अभी कौन होता था 12th. Is that okay? So in settlement of 7,000 we are paying rupa 6,000. हाँ यार पैसा कितना पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है B3 goes out credit in settlement of 7,000. किसको मैंने दिया, रूपा को. क्यों दिया मैंने रूपा को, क्योंकि मुझे उसको पैसा देने का था इसलिए दिया. देने का था मतलब वो मेरी कौन थी, और अब तुमने पैसा दे दिया, वो हमारी क्रेडिटर नहीं रही. सीजेस टू बी क्रेडिटर तो डेबिट. कितने, अभी एक मिनट, वो सीजेस टू बी क्रेडिटर फॉर हाउ मच, लेकिन मैंने तो सिर्फ 6,800 देके मामला सलटा दिया है, तो बाकी का 200 मुझे उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है. तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया कि मुझे डिस्काउंट मिला, तो वो मेरा एक्सपेंस हुआ है इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड B4. लोन टेकन फ्रॉम रावण 50,000. क्या आ रहा है जा रहा है,
पैसा alright comes in 10. How much? और हमने उससे लोन लिया तो हमको कभी ना कभी वो पैसा उसको वापस देने का है, वो हमारा क्या बन गया, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो रावण क्रेडिट। अभी जरा एक छोटू सा नया रूल भी समझ लो, बिकम्स लेटर क्रेडिट। जब भी लोन हो ना तो लोन वर्ड यूज जरूर करो। लोन टू रावण या फ्रॉम रावण। Always advisable to write the word loan in the name of that account. And third, advance wages paid. हमने वर्कर को एडवांस में वेजेस पे कर, पैसा जा रहा है, goes out credit। कितना जा रहा है भाई? मैडम आप लिखने का कष्ट बाद में करें। जिस वर्कर को मैंने एडवांस में पैसा दिया, मुझे फ्यूचर में उससे कुछ लेने का वापस, या तो पैसा या तो सर्विस उससे लेने का, लेने का वो मेरा क्या बन गया, डेटर। तो मुझे उसको डेबिट करना चाहिए, हाँ या ना? लेकिन मैं उसके बदले प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ, पार्टी के अकाउंट के बदले कर रहा हूँ। तो आप समझ जाओ अभी मैं क्या बोलने वाला हूँ। प्रीपेड वेजेस, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था, प्रीपेड एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव कॉस्ट। गया काम से। चलिए, these transactions were written right, जो लास्ट लेक्चर में हमारे बीच नहीं थे। We first wrote the rules, we explained the rules. You'll have to complete your notebook, huh? So you just take a quick, for those who are not with us last time. हाँ, ठाकुर तो ये हो गया। And then a few transactions. Click. फिर and आगे। And now everyone has to start writing journal.
बस रही हो सेवन तक हो गया एटलीस्ट टिल सेवेंथ एवरीवन
संपला, एटलीस्ट 10 तक हो गया सबका। हम उसके बिहाफ पे फ्रेट पे कर रहे हैं ना। इन फुल सेटलमेंट नहीं हुआ है, वो आगे हो रहा है। इन फुल वर्ड मत यूज करो, फुल वर्ड मत यूज करो। पेड टू रूपा इन सेटलमेंट एंड डिस्काउंट, इन फुल सेटलमेंट नहीं है। स्क्रॉल, बस ये सेटलमेंट वाला 16 नहीं, just check one moment।
Be quick. Over. At least 15 तक हो गया सबका. 15. Okay, so you can continue next time. Bye bye. Take care.